पौड़ी तुरे पलाणे पौण वे, हर रंगी हरम सवारिया। कोठे मंडप माड़िया, लाए बैठे कर पासारिया। चीज करन मन भाव दे, हर बुझन नाई हारिया। कर फुरमाए सिखाया, वेख महत मरणु विसारिया। जरियाई जो बन हारिया, जरियाई जो बन हारिया। आसा दीवार दी 17ਵੀਂ पौड़ी, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਮੂਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਭੰਗ, ਚਰਸ, ਸੁਲਫਾ, ਗਾਂਜਾ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਧਰੇ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋਬਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਧਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੂਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਇਹ, ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇ, ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਘੋੜੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕੀ ਘੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਐਸੇ ਘਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਐਸੇ ਹੋਵਨ ਕਿ ਪਵਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲਣ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਵਨ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ, ਕੋਠੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪਸਾਰੇ। ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ। ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੈ, ਹੰਡਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਜੋ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਮੁਖ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੇਤੂ ਹੈ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਗੁਣ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕ ਅਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਔਗਣ ਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਸੰਤੋਖ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਇਹ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। बस होर कोई असंतुष्टि है ही नहीं। अगर कोई मनुष्य असंतुष्ट है तो परिवारिक तल ते असंतुष्ट होएगा या व्यवहारिक तल ते असंतुष्ट होवेगा या फिर व्यक्तिगत अपने आप दे असंतुष्ट होवेगा। परिवारिक असंतुष्टि ये व्यापक है क्योंकि मनुष्य ये सोचता है जैसे मेरे बच्चे होने चाहिए सन वैसे नहीं है, जैसे मेरे मां बाप होने चाहिए सन वैसे नहीं है, जैसी मेरी पत्नी होनी चाहिए सी या पति होना चाहिए सी वैसे नहीं है। इस तरह का मनुष्य जो परिवारिक तल ते असंतुष्ट है हर वक्त अपनी बेचैनियां च उलझिया रहेगा, हर वक्त परेशानी का बोझ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਰੰਤ ਗਿਰ ਪਤਤ ਪਾਤਾਲੰ जलंत दे दीप बैसांतरे बहंत अथा तोयं तोरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मंत मरणं। कोई मनुष्य है बहुत उच्ची बुलंदियां तो गिर रहा होवे, हिमालय दी चोटी तो गिरंत गिर पतत पाताल खड़ दे च गिर रहा होवे, पाताल दे च गिर रहा होवे, पहाड़ दी चोटी तो बलंत दे दीप बैसांतरे ज्वालामुख दी अग दे विच जल रहा होवे, सड़ रहा होवे, शोले बल दी अग ओदे च जल रहा होवे या फिर अथाह सागर दियां लहरां दे च गोते खा रहे होवे, डुब रहे होवे। इतना वड्डा ये जो कष्ट है, दुख है, महाराज कहते हैं दुखंत ग्रह चिंता जन्मंत मरणन। इन्हां सारे दुखा नालों भी घरेलू कलेश जिहड़ा है ये ज्यादा दुखदाई है। घर दी जिहड़ी चिंता है ये ज्यादा दुखदाई है। क्यों कि ये जन्म ते मरण दा कारण बनदी है। बार बार जमा दी मार दा ये कारण बनदी है। जद कि जल दे च मनुख डुब गया, मर गया, 5-10 मिनट का कष्ट, अग दे सड़ गया 10-20 मिनट की तकलीफ, पहाड़ की बुलंद चोटी तो थले गिरे है, हड्डियां चूर चूर हो गई ने, तड़पे है आधा घंटा घंटा, बस इन्नी तकलीफ। पर ग्रह कलेश जिहड़ा है, घरेलू कलेश, घरेलू विपता झगड़े, ये इतने वड्डे कलेश नूं जन्म देंदे ने, कष्ट नूं जन्म देंदे ने कि मनुख बार बार जमदा है, बार बार मरदा है और हर जन्म दे दुख भोगदा है और दुख दे मर जाता है। दुख दी यात्रा बहुत लंबी हो जाती है उस मनुख दी जो घरेलू कलेश दे जी रहे है। ते घरेलू कलेश दे कौन है जो असंतुष्ट है? इस तरह के मनुख नूं कहंदे ने परिवारक तौर ते असंतुष्ट। सारी दुनिया दे ये असंतुष्टि व्यापक है। कोई अपनी मां तो असंतुष्ट, कोई अपने पिता तो, कोई अपने बच्चियां तो असंतुष्ट, कोई अपनी पत्नी तो, कोई अपने पति तो, कोई भिरावां तो असंतुष्ट है, तो कोई मित्रां दोस्तां तो असंतुष्ट है। कहंदा जैसे मेरे दोस्त होने चाहिए सन वैसे नहीं ने, जैसा मेरा भरा होना चाहिए सी वैसा नहीं है, जैसियां मेरियां भैणां होनियां चाहिए सन वैसियां नहीं ने, और जैसी मैनू पत्नी चाहिए सी वैसे नहीं है, जैसा पति होना चाहिए सी वैसा नहीं है। इसनूं कहंदे ने परिवारक संतुष्टि।
ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਲ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵਧਾਏਗੀ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਹੀ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ असंतुष्टि। जैसी मेरी प्रारब्ध है, जैसी मेरी उपजीविका है, जैसी मेरी आमदन है, मैं इस तो संतुष्ट नहीं। इसनूं कहंदे ने विवहारिक असंतुष्टि। परिवारिक असंतुष्टि, विवहारिक असंतुष्टि, ये दो असंतुष्टियां इतनियां प्रबल ने कि ऐसा असंतुष्ट मनुख हर वक्त उलझन दे च होवेगा, हर वक्त कल्पनावां दा ताना पेटा बुनदा रहेगा, हर वक्त तनाव अपने सिर ते रखेगा और अपना जीवन गवाई जाएगा। ये दो असंतुष्टियां व्यापक तौर ते संसार विच मौजूद ने और इन्हां दो असंतुष्टियां दा नाम है परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि। एक तीसरी असंतुष्टि है जिसनूं कहंदे ने व्यक्तिगत असंतुष्टि। ये परमार्थिक है, ये धार्मिक है। व्यक्तिगत असंतुष्टि, जो व्यक्तिगत तल ते असंतुष्ट है, इस तरह के बंदे नूं भगत कहंदे ने, साधक कहंदे ने। ये परिवारक तल ते संतुष्ट है, कहंदा जैसा मेरा परिवार है ठीक है, जैसे मां बाप ने ठीक ने, जैसे बहन ते भरा ने बिल्कुल ठीक ने, जैसी पत्नी है, जैसा पति है, ये ते ठीक ने, और जैसी मेरी प्रारब्ध है ये भी ठीक है, पर जैसा मैं हां मैं ठीक नहीं। ये अपने आप दे असंतुष्ट होंदा है, कहंदा है हे प्रभु बाकी ते सब कुछ ठीक है, मेरा परिवार ठीक, मेरी उपजीविका भी ठीक, प्रारब्ध भी ठीक, पर की करा हे प्रभु मैं ठीक नहीं। तो ये तीन तरह दियां असंतुष्टियां ने, परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, व्यक्तिगत असंतुष्टि। अक्सर देखा गया है कि दो ही असंतुष्टियां दे सारा संसार घूम रहा है, परिवारिक असंतुष्टि और व्यवहारिक असंतुष्टि। घर घर दे कलेश है परिवारिक असंतुष्टि करके, और कलेश तो पैदा हुई पीड़ा जन्म ते मरण का कारण बनती है। ते कलेश पैदा होंदा इत्थों, पुत्र मां बाप तो संतुष्ट नहीं और मां बाप बच्चियां तो संतुष्ट नहीं, पति पत्नी तो संतुष्ट नहीं और पत्नी पति ते संतुष्ट नहीं। सारी दुनिया दियां अदालतां तलाक दे मुकदमियां नाल भरियां पईयां ने। कारण किधरे पति संतुष्ट नहीं है, किधरे पत्नी संतुष्ट नहीं है, ते असंतुष्टि कलेश नूं जन्म देंदी है। सारी दुनिया दियां अदालतां दे भिरावां दे मुकदमे, भाई भाई दे मुकदमे, एक भिरा दूसरे भिरा ते संतुष्ट नहीं है। इसनूं कहंदे ने परिवारक असंतुष्टि, और इहदे नाल परिवार नरक बन जाता है। इस तरह के बंदे नूं किसी होर दोजक दे जाण दी लोड़ नहीं, उसका परिवार ही दोजक है जो परिवारक तल ते असंतुष्ट है। व्यवहारिक असंतुष्टि, ऐसे मनुख का धंधा ही नरक है, क्योंकि अपने धंधे दे अपने व्यवहार दे संतुष्ट नहीं, अपनी प्रारब्ध ते संतुष्ट नहीं, अपनी उपजीविका ते संतुष्ट नहीं। तो ऐसा मनुख धंधा करदे होया, कम करदे होया किसी हद तक नरक ही भोगेगा, क्योंकि संतुष्ट नहीं है। लेकिन एक तीसरी असंतुष्टि जो धर्म नूं जन्म देंदी है, सच नूं जन्म देंदी है, प्रभु दे नेड़े ले आउंदी है, व्यक्तिगत असंतुष्टि। हे प्रभु बाकी ते सब कुछ ठीक है, जैसा मेरा परिवार है ठीक है, जैसी मेरी प्रारब्ध है ठीक है,
पर जैसा मैं हाँ मैं ठीक नहीं। बाबा फरीद कहते ने मुझ अवगुण सह नाही दोष। हे प्रभु तेरे ते कोई दोष नहीं, तेरी किरपा तेरी बख्शिश दा मैं अजे तक पात्र नहीं बन सकिया। तेरे तो अजे तक मैनू जे आनंद दी प्राप्ति नहीं हो सकी तो कमी मेरे विच है, दोष मेरे विच है। मुझ अवगुण सह नाही दोष। ये जिहड़ी व्यक्तिगत असंतुष्टि है, इस दे च मनुख इस ढंग की साधना करता है कि अपने आप को महान बनाता है, पात्र बनाता है। ते जिस दिन पात्रता बन जाती है उस दिन परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यवहारिक ते परिवारिक असंतुष्टि च फसिया होया है वो बहुत कुछ भी बना लवे ते बहुत कुछ भी प्राप्त कर लवे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जिंदगी की बाजी हार जाएगा, भावें बहुत कुछ प्राप्त कर लवे कि ना कुछ प्राप्त कर लवे। महाराज कहते हैं तुरे पलाणे पाउण वे हर रंगी हरम सवारिया। घर दे घोड़े ऐसे होवन, असवारी दे साधन ऐसे होवन कि हवा नाल गल करन, और घोड़ियां दे उपर काठियां पईयां होवन सोने दियां। हर तरह दे रस ते रंग दे नाल हरमां नूं सवार लिया जाए। मनुख अपने हरम विच मन भावदे पदार्थां नूं रख लवे ते पवन नाल गल्लां करदे होए घोड़े फिर उच्चियां उच्चियां माड़ियां कोठे ते मंडप, कोठे मंडप माड़ियां लाए बैठे कर पासारे बहुत लंबा पसार। बड़ियां बड़ियां हवेलियां, बड़ियां बड़ियां उच्चियां इमारतां। दरअसल जमीन दे उत्ते जद मकान उच्चा उठदा है इहदे च मनुख अपनी उच्चाई समझ लैंदा है, मैं उच्चा उठ गया। यही कारण है कि मकान नूं उच्चा उठाना चाहता है। हुण मकान ही उच्चा नहीं उठिया, मैं भी उच्चा उठ गया। ये मेरा झंडा ही उच्चा नहीं होया, मेरा धर्म उच्चा हो गया है, मेरा व्यक्तिगत जीवन उच्चा हो गया है, मेरा समाज तल उच्चा हो गया है, मेरा देश उच्चा हो गया है। इस वास्ते कहते ने कि माड़ी कोठा नीवा नहीं चाहिए, उच्चा चाहिए, झंडा उच्चा चाहिए, बुलंद चाहिए। बुलंद झंडा बुलंदी दी निशानी जो है बन जाता है। तो सब कहते ने ये उच्चियां उच्चियां माड़ियां किसी हद तक हर व्यक्ति दे अपने अपने झंडे ने जो इसने जमीन दे गाड़े हुए ने जगत नूं दसन लई कि ये मेरा झंडा है और इतना उच्चा है, इतना बुलंद है। महाराज कहते अगर इस तरह का भी किसी ने पसारा किया होवे, बड़े वड्डे वड्डे महल कोठे मंडप ते माड़ियां ते उन्हां दे हर तरह का हार श्रृंगार मौजूद होवे, हर तरह का रस मौजूद होवे ते असवारियां लई घोड़े बूए ते बने पे होवन, अस्तबल विच मौजूद होवन जो हवा नाल गल करदे होवन। फिर सतगुरु कहन चीज करन मन भावंदे। जो मन चावे खाण नूं, जो मन चावे पहनण नूं, जो मन चावे देखण नूं, हर तरह का साजो समान वो मुहैया कर लवे, प्राप्त कर लवे। इधर मन दे इच्छा पैदा हुई, इधर उसकी पूर्ति हो गई। मनुख दे प्राणां दे इसकी बड़ी प्रबल प्यास है कि मेरी इच्छा तत्छिन पूरी होनी चाहिए, उस दे देर नहीं लगनी चाहिए। एक कल्पना की गऊ भी मनुख ने बनाई है जिन्हों कहते हैं काम धेन गऊ, जो तत्छिन कामना की पूर्ति कर देंदी है। इधर कामना करो इधर पूरी हो गई। इस तरह कल्पना का एक वृक्ष भी बनाया है जिन्हों कहते हैं कल्प वृक्ष। इधर कल्पना करो तो इधर इस दरख्त ने सारियां कल्पनावां की पूर्ति कर दी, सारी इच्छावां की पूर्ति कर दी। तो मैं इस करा समूह ब्रह्मंड विच कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिहदे थल्ले बैठो कल्पना करो तो तत्छिन पूरी हो जाए। गऊआं ते ने पर कामधेन गऊ कल्पना दी गऊ है। वृक्ष ते बथेरे ने पर कल्प वृक्ष वाकई कल्पना दा ही वृक्ष है, क्योंकि मनुख की कल्पना के अंदर बार बार ये दौर चलता है
कि कुछ ऐसा होवे कि मैं इच्छा करा ते तत्क्षण पूरी हो जाए। कोई ऐसा पहाड़, कोई ऐसा देवता, कोई ऐसा संत, कोई ऐसी गऊ, कोई ऐसा वृक्ष, कोई ऐसा ग्रह, कोई ऐसा नक्षत्र होवे कि जिस दे सामने वे देखा और इच्छा करा तत्क्षण पूरी हो जाए। तत्क्षण इच्छा कोई भी नहीं पूरी होंदी, वक्त लगता है, समा लगता है, और उस दे लई सबर चाहिए। शायद इस वास्ते बाबे फरीद ने कहा कि सबर एव सुआओ जे तू बंदा दृढ़ करें, वध थी वे दरियाओ टुट न थी वे वाहरा। साबर बंदे सागर दी तरह हो जाते हैं, छोटे छोटे नदी नालियां दी तरह नहीं, उते महान हो जाते हैं। पर साहब कहते हैं चलो ऐसा भी हो जाए कि मन दे च जिहड़ी इच्छा पैदा होवे और जबान नाल उसदी फौरन फरमाइश होवे ते पूर्ति भी हो जाए, उसे वक्त उस इच्छा दी पूर्ति भी हो जाए। चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया। अगर इस तरह का कोई फसिया होया मनुख है महल माड़ियां दे च, तरह तरह के हरमां दे च, महाराज कहते उसनूं हरी दी सूझ नहीं आउंदी, हरी दी समझ नहीं आउंदी, ते इहदे नाल की होंदा है, वो अपना जीवन हार जांदा है। एक जुआरी धन हारदा है, कोई संपदा हारदा है, कोई अपने कपड़े हारदा है, कोई गहने हार देंदा है। इतिहास दे च ऐसा भी जिक्र है कि कोई अपनी स्त्री हार देंदा सी जुए दे च, पर यह ते बहुत बड़ा बदकिस्मत है, ये ते अपने आप नूं हार के चले है। भगत कबीर कहंदे ने चले जुआरी दोए हथ झार, ये दोवें हथ झाड़ के जुआरी जा रहे है। ये चार कंधियां ते कौन जा रहे है, ये मरगढ़ घाट की तरफ कौन जा रहे है, ये ओ जुआरी जो जीवन हार गया, जिंदगी हार गया। जेतू ते ओ है कि जिन्हों परम जिंदगी मिल जाए जिहदे च मौत ना होवे, पर इते हार के जा रहे है, इन्हों परम जिंदगी नहीं मिली, इन्हों परम जीवन नहीं मिलिया, ये हार के जा रहे है। चले जुआरी दोए हथ जार, तो साहब कहंदे ने चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया। कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण विसारिया। महलत महलात नूं वेख के, अपना लंबा चौड़ा पसारा वेख के, ते तरह तरह की फरमाइश की पूर्ति वेख के मौत भुल गई, जन्म चेते रहा, जीवन चेते रहा, मरण भुल गया। धर्म का जन्म मौत दे चिंतन तो है, काल दे चिंतन तो ही अकाल का जन्म है। जद कोई काल का चिंतन करता है, मौत का चिंतन करता है, तो ऐसा होता है कि उसनों वो जीवन प्राप्त हो जाता है जिहदे च मौत नहीं। आखिर ऐसी ही खूबी है मौत के चिंतन दे च, क्योंकि जिसनों अपनी मौत चेते है वो किसी नाल छल नहीं कर सकेगा, कपट नहीं कर सकेगा, किसी से जबर नहीं कर सकेगा, किसी नाल धोखा नहीं कर सकेगा, किसी नाल झूठ नहीं बोल सकेगा, और किसी का कुछ हथिया नहीं सकेगा। अगर हथियाया इसने और इस दे च उसनों पूर्ण तौर पे सफलता मिली है, तो समझ लेना इस मौत चेते नहीं, जीवन चेते है, जन्म चेते है। ऐसे मनुख की दृष्टि अपने आप दे च नहीं आउंदी जो असंतुष्ट है, उदी दृष्टि पराए घर दे च आउंदी है। और यही आचरण तो गिरी हुई गल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने मन ली है कि लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद विद आचरण। अगर दृष्टि प्राय तन ते वह टिक गई है तो दृष्टि दुराचारी हो गई, अगर दृष्टि प्राय धन ते टिक गई तो दृष्टि ते चोर हो गई। जिस दी दृष्ट चोर हो गई, जिस दी दृष्ट यार हो गई, उन्होंने हत्थां पैरां नाल भी चोरी करदियां देर नहीं लगेगी। उहदे हथ पैर जिस्म भी दुराचारी होंदियां कोई देर नहीं लाएगा, क्योंकि दृष्टि ते दुराचारी हो गई। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने महान है ओ मनुख के दृष्ट बिकारी बंधन बांधे हौं तां के बल जान। जो
अपनी दृष्टि ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾਵੇ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕੇ, पराए धन ते ना टिके, पर अंदर असंतुष्टि है तो ऐसे मनुख की दृष्टि पराए धन ते ही टिकेगी, अपने धन ते टिक नहीं सकती, क्योंकि अपने धन दे चो संतुष्ट नहीं है। तो दृष्टि चली गई है पराए धन ते। अपने परिवार, अपनी पत्नी ये संतुष्ट नहीं है, तो दृष्टि चली गई है पर नारी थे, तो दृष्टि ते दुराचारी हो गई, दृष्टि ते चोर हो गई। चारों पासे चोर दृष्टियां ही घूम रही ने, दुराचारी दृष्टियां ही घूम रही ने। जग दा वातावरण बहुत मैला, क्योंकि हथ पैरां दी इतनी लंबी पहुंच नहीं जितनी दृष्टि की पहुंच है। अखां बहुत दूर तक वेखदियां ने, हाथ इतनी दूर तक नहीं जा सकते, पैर इतनी छेती इतनी दूर तक नहीं जा सकते जितनी दूर तक और जितनी जल्दी दृष्टि चली जाती है। पर दृष्टि दुराचारी होवे, दृष्टि चोर होवे, क्योंकि जिस दे अंदर असंतुष्टि है उहदी दृष्टि बार बार दूसरियां दे तन ते टिकेगी। जिस दे अंदर असंतुष्टि है उहदी दृष्टि बार बार दूजियां दे धन ते टिकेगी, और जे दूजियां दे धन ते टिकी है तो दूजे दा धन खतरे दे च है, दूजे दे तन ते टिकी है तो दूजे दी असमत खतरे दे च है। असंतुष्ट मनुखां करके ही संसार दे च किसी दी असमत खतरे दे च है, किसी दी धन संपदा खतरे दे च है। इस वास्ते धर्म दा मूल गुण है संतुष्ट होना। साहिब कहंदे ने महलात नूं वेख के मरना भुल ही गया, और दृष्टि चारों पासे संसार दे च भटक रही है। एक दिन ऐसा होया कि जर आई, बुढ़ेपा आ गया, वृद्धावस्था आ गई, जोबन हारिया। जर आई जोबन हारिया, जर बुढ़ेपा आया है, इन्हें जवानी नूं हरा दिता है। अक्सर असी ऐसा सुनते हैं ते देखते हैं कि जवानी बुढ़ेपे नूं हरा देंदी है। अगर एक बुढ़ा एक जवान तो लड़न तो स्पष्ट है जवान जीत जाएगा, बुढ़ा हार जाएगा। एक बुढ़ा होवे एक जवान होवे, जवानी जीतेगी। एक बुढ़ा दौड़ लावे, एक जवान दौड़े, बुढ़ा रह जाएगा पीछे, जवान आगे निकल जाएगा। पर साहिब कहते ने बुढ़ेपा वास्तविक अपने आप दे इतना प्रबल है, जद किसी ते आउंदा है जवानी हार जाती है, जोबन हार जाता है, जोबन दे उपर ही टुट पैंदा है बुढ़ेपा। व्यक्तिगत तल ते जद बुढ़ेपा आउंदा है, जर अवस्था आउंदी है, जवानी रुखसत हो जाती है, जवानी नूं मिटा के रख देंदा है। इस वास्ते देखण दे च आया है कि जीवदियां जीवी मनुख 2 दफा मरदा है। किसी जवान नूं पुछीए तेरा बचपना किथे गया, कहंदा मर गया। किसी बुढ़े नूं पुछीए तेरी जवानी किथे गई, कहंदा मर गई। ते जवानी नूं किसने मारिया, बुढ़ेपे ने। बचपने नूं मारिया जवानी ने, ठीक है जवानी बलवान है, बचपने नूं मार गई, पर एक पासे बुढ़ेपा इतना बलवान है, जवानी नूं मार गया। साहिब कहंदे जर आई जोबन हारिया, इधर बुढ़ेपा आया, इधर जवानी हार गई। ते जैसे जवानी हार गई, ये हरम बेमजा हो गए, ये महल माड़ियां बेरसियां हो गई, ये रूप रंग सब बेरसे हो गए, सब फिक्के पै गए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने कि तू वास्तविक व्यक्तिगत असंतुष्टि नूं पैदा कर, ताकि तू अपने अंदरों परमात्मा नूं प्रगट कर सकें ते परमात्मा नूं प्राप्त कर सकें।